नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए बजट स्पेशल वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हमारे साथ है रघुनाथ जी और रघुनाथ जी हमें एक स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं जो हमें बजट डे जैसे इवेंट वाले दिन पे एग्जीक्यूट करने पे कुछ फायदा हो सकता है या फिर आप इसको कोई भी इवेंट में एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब ये स्ट्रैटेजी है क्या? शॉर्ट वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी को मैं आपको ऐसे ही जरा एक शॉर्ट में समझा देता हूं कि ये क्या रहने वाला है। सो बेसिकली आपने ये चीज नोटिस की होगी, जो भी ऑप्शन ट्रेडर होंगे उन्होंने ये चीज तो अच्छी तरीके से नोटिस की होगी कि जब भी बजट आने वाला होता है या इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले होते हैं या कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है, तब ऑप्शंस के जो प्रीमियम है ना, कॉल और पुट के, सबके बहुत बढ़ जाते हैं। और फिर जब इवेंट खत्म हो जाता है और समझो इवेंट में कुछ खास नहीं हुआ, तो वापस से वो प्रीमियम पूरे ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली उस ड्रॉप प्रीमियम को कैप्चर करने के लिए स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी में रघुनाथ जी ने हमें बताया है कि ये शॉर्ट वॉलेटिलिटी को हमें कैसे करना चाहिए। एंड इवन लास्ट में इसका हमने बैक टेस्ट भी बताया है कि 2019 से लेके 2025, मतलब इतने सारे बजट आके गए होंगे और सारे ये बजट में हमने हर बार ये स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया होता तो कितनी बार हम प्रॉफिटेबल होते और कितनी बार हमने लॉस किया होता और इसका जो विनिंग रेट है वो क्या है। तो पूरा जो इसका बैक टेस्टिंग है वो सारी चीज बताई है। तो अभी मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, जाते हैं रघुनाथ जी के पास, सीखते हैं ये स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इवन इन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपने सेम इवेंट डे पे कट कर दिया तो आपका प्रॉफिट लॉस क्या हो सकता है, आपने 2 दिन रखा तो क्या, 5 दिन रखा तो क्या, सारी चीजें डिटेल में समझाई है। तो आप ये चीजों को अच्छी तरीके से देख लो और सिर्फ बजट नहीं, कोई ऐसे बड़े इवेंट डे पे आप ये स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं आज की हमारी ये स्पेशल स्ट्रैटेजी सीखने के लिए। Hello guys, in this video we want to talk about how to do options trading on budget day. Okay, so I'm Raghunath Reddy. To understand how to do this budget trading, we need to know a little bit about implied volatility. Okay. So implied volatility is the expected volatility in stocks future price as implied by stocks option prices. So if you have to break it down, it says that options price imply by how much the future underlying price will move. So what will be the expected volatility of the stock? Stock, so right. That will be implied by the options prices. Okay. So the name that we have given to this phenomenon is called as implied volatility. Okay. So IV is expressed as annualized one standard deviation range of a stock price. A little bit complex, so it's a lot of calculations behind that, so don't worry about that now. So this IV is calculated using Black-Scholes formula. Okay. Now if we take an example of two stocks which are similar in price, and if we take their strikes, the at the money strikes, the strikes which are closest to the underlying price, and if you look at their call price, call strike price and put strike price, as you can see, DLF1 has higher price compared to HDFC Life. Their block size are more or less similar. Okay, and the IV, as a result of that, the IV is now 37 for DLF and 27 for HDFC Life. Now one would ask why the IV of DLF is higher than the HDFC Life. This is determined by the market participants, right? Because they are the ones who are driving the option prices, and option prices drive the implied volatility. Correct. So what here it means is that higher option prices means higher extrinsic value, which means higher IV. Okay? Right. Lower option prices means lower extrinsic value and it therefore low IV. So you might be wondering what is extrinsic value. So basically options have two components. One is intrinsic value, one is extrinsic value. Intrinsic value is nothing but the difference between the strike price and the underlying price. Okay. And whatever is remaining, the excess, then that is called as extrinsic value. So usually only in the money options have intrinsic value plus some extrinsic value, but out of the money options and at the money options will have only extrinsic value. Okay. Correct. So high IV means high option prices, high IV means high extrinsic value. Okay. Now pricing of options is a result of simple supply and demand concept, right? Like anything like vegetables or fruits, everything is a result of
supply and demand. If there is a huge supply, the prices are depressed. If there is very less supply, then prices are more, right? Okay. It's the same in the case of options as well. If there is a huge demand for options, obviously the prices or the premiums of the options will be higher. Now, options are bought by market participants either to hedge or speculate the price movement of the underlying stock or index, right? Correct. So if somebody is buying option, they're buying expecting that whether it could be call option or put option. So if somebody is buying a call option, they're expecting that the underlying will move in the upward direction, right? And similarly, if somebody is buying put option, they're expecting the put to move, the underlying to move down. Right. Okay. Right. So that drives the option pricing. Okay. Now, impending news, earnings results, or some unexpected event environment, like Trump tariffs, for example. Impending news can be, for example, in the case of pharma, there can be some news that FDA might approve certain drug in the US market, for example. Earning results like quarterly earning results for the stocks, that can also be an event, right? So this all news information will drive the demand for option prices, resulting in higher prices, and therefore we have higher IV and therefore higher expected movement, right? So higher option prices means we are expecting higher movement in the underlying. Okay. Right. So that is simply because we are expecting some news to drive the price of that particular underlying. And even RBI Monetary Policy Committee, when they are announcing the decrease or increase or same interest rate, that also drives the underlying price. For example, it drives the bank nifty because it hugely influences the bank stocks, and bank nifty is a proxy of all these bank stocks. Non-event market environment in an underlying leads to low or no demand for the option, and therefore there is lower option prices and therefore low IV. Okay, and therefore we expect little or no movement in the underlying. Okay. Okay. So that is how the option pricing is done, and that is how implied volatility comes into picture. Now we also need to understand about another term called as implied volatility percentile or IV percentile. So it is nothing but it's a way of ranking the implied volatility. See, sometimes if you look at the implied volatility, we don't know whether it is high or low unless you follow that particular stock's IV continuously every day. Then only you'll know whether it is high or no. But for somebody who's coming into trading or who need not necessarily follow that particular stock each and every day, they don't know whether the given IV is high or low. Okay. To understand that, we introduce this implied volatility percentile. So IV percentile measures the percentage number of days in the past 1 year that the underlying IV has been below the current IV. Okay. To simplify, how many number of trading days in the last 1 year the underlying IV has been the current IV. Okay. Okay. Yeah. So I think that's easy to understand. And then the number of trading days in a year. So we have 252 days, the trading days in a year, roughly speaking. Okay. So for example, let's assume that in the past 1 year, the IV has been for 242 days, the IV has been below the current IV. Right. Okay. So then the IV percentile will be 242 divided by 252 into 100. That means the IV percentile is 96%, which means it is at the highest level, almost close to highest level. If it is highest means that will be 100 percentile. Right. If the lowest means it will be 0%. Okay. So that's how you know whether the given IV is high or low using the IV percentile number. Okay. Now let's look, this is a little bit old example. So let's say our current IV, which India VIX is nothing but IV of the Nifty. Now the current IV is 20.62, let's assume. Okay. And this is the last 1 year IVs, 1 year IVs, okay? Okay. The lowest was 10.2, the highest was 26.75. Now I want to know how many number of days the IV was below this current IV. Okay. Now as a result of that, our IVP will be 96. So it's quite high. If you look compared to the highest IV, it is almost very high, right? Right. So that is how you know whether the IV is high or low. Okay. So for this strategy, Raghunath ji,
हमें ये आईवी ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Yes. कि अभी इसका परसेंटाइल, आईवी परसेंटाइल कितना है? Yes. ओके So now, so just to summarize, we know this is the definition of the implied volatility. ओके Higher option prices means higher extrinsic value and higher IV. Lower option prices means lower extrinsic value and imply lower IV. ओके Okay, fine. So before going to that, I'll just briefly talk about how the IV looks like. Okay, so here you can see the IV of this is a current IV 2026. You know, in the January. So ओके this year is Nifty, and this is your current IV. So the IV has been going up, going into the राइट event, right? This is what we expect when we are going into an event. That IV will go up because people Okay. are speculating that there will be a huge move in the underlying. Now, if you Right. look at the IV percentile at the bottom one, it is almost 75. So which is kind of above average, right? If it is Okay. above 50, it means above average IV Okay. percent. So our IV, current IV is above average. So the Another premium thing, of options are right now is high, we right can now say. higher compared to last 1 year. Okay. The comparison will be to last 1 year data. Okay. Now, another thing I want to show you is that IV rises around events. Okay, Correct. and this is most spectacular in the case of Infosys. Yeah. So this Yes. this vertical dotted lines represents the quarterly earnings announcement. Okay. Correct. Now you see before every quarterly announcement, you see the increase in IV, increase in IV, increase in IV, increase in IV. Correct. But after the announcement, suddenly the volatility crashes, the implied volatility, which means Right. the premiums rise before event, and immediately after the event, the premiums drop or the IV drops. Okay. So our strategy will try to exploit this phenomenon. This phenomenon is called as volatility crash. Okay. So this So this basically, also because happens. of okay, so because the IV is increasing, so the Yeah. options के जो प्रीमियम है वो बढ़ रहे हैं, एंड Yes. आफ्टर इवेंट वो प्रीमियम क्रैश हो जाते हैं, तो अपना Yes. स्ट्रेटेजी वो प्रीमियम के जो क्रैश होने के टाइम पे जो बीच में जो गैप है, हम उसको कैच करने की कोशिश करेंगे. Yes. Yes. ओके. तो हम अभी कोशिश ये करेंगे, ये जो क्रश हो रहा है, हाँ. हम ऐसा स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जिससे ये क्रश को यूटिलाइज करके अपना स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल करेंगे. ओके. तो ये so what is this strategy? स्ट्रैटेजी का नाम है शॉर्ट वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी. सो इट्स अ जेनेरिक टर्म है ये, शॉर्ट Right. वॉलेटिलिटी, बिकॉज वी आर शॉर्टिंग Okay. द वॉलेटिलिटी, क्योंकि हमें पता है कि वॉलेटिलिटी कम होने वाला है राइट. इवेंट के बाद. सो जैसे बजट अनाउंसमेंट होगा, उसका वॉलेटिलिटी कम हो जाएगा. तो सेम Right. चीज को हम लोग एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करेंगे यूजिंग शॉर्ट वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी. सो यूजुअली शॉर्ट वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी में क्या होता है, हम ऑप्शन सेल करेंगे इसमें, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन सेल करेंगे इसमें. ओके. राइट. शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डर, शॉर्ट आयरन कॉन्डर एंड शॉर्ट आयरन फ्लाई, ये 4 शॉर्ट वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजीज जो है, हम इस शॉर्ट वॉलेटिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए डिप्लॉय करेंगे हमें. करेक्ट. हमें इसमें सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजी है शॉर्ट स्ट्रैडल. ओके. बिकॉज शॉर्ट स्ट्रैडल विल कैप्चर मोस्ट प्रीमियम व्हेन देयर इज ए volatility crash compared to Okay. short strangle, compared to short iron condor, compared to short iron fly. ओके. ठीक है. तो हम फोकस करेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल पे. तो लेट्स स्ट्रैटेजी पे जाते हैं हम लोग. ठीक है. एंड सर, ये आईवी परसेंटाइल मैं कहाँ से ढूंढ सकता हूँ? अच्छा, सो अगर आप ऑप्स्ट्रा में जाएंगे, ऑप्स्ट्रा डिफाइनिंग सिक्योरिटीज, डिफाइनिंग दोनों में, ऑप्शंस मेन्यू में, अगर ऑप्शंस डैशबोर्ड में जाएंगे, आपका सारा इंडेक्स का और स्टॉक्स का सबका आईवी मिल जाएगा. जैसे यहाँ पे आपका आईवी मिल गया, फिर आईवी परसेंटाइल भी मिल गया. वाओ. हाँ. तो सब कुछ एक जगह मिल जाएगा. करेक्ट. करेक्ट. ठीक है. ओके. सो आगे अगर अब अभी हमें शॉर्ट स्ट्रैडल होता क्या है ये दिखाता हूं मैं. शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या करते हैं, एट द मनी ऑप्शन स्ट्राइक को शॉर्ट करते हैं. वन कॉल ऑप्शन, वन पुट ऑप्शन इसमें. राइट. So for example, अगर at the money based on future price है around 25,350. 350. तो हाँ, 25,350 को मैं शॉर्ट करूंगा, February expiry.
Okay, February. This is monthly. We will do monthly. Monthly. We can do weekly, monthly, doesn't matter. Okay. It's just an example to show कि क्या है ये. Correct. So ये Okay, short sir. straddle है और आपका ब्रेक इवन्स देखिए, it is around 5.5%. Right. एक साइड 6.5% है, एक साइड 5.5% है. Okay. ठीक है. तो इसमें अभी we sold one call option, we sold one put option, both Put of option. at the many strikes है. Correct. और इसमें जस्ट एक ब्रीफली टच करूंगा कि इसमें जो हम देखना चाहिए वो है वेगा. Okay. ठीक है. जब वेगा नेगेटिव होता है इसका मतलब ये है अगर वॉलेटिलिटी ड्रॉप होता है तो हमें इतना प्रॉफिट होगा इसमें वेगा में. Oh, okay, got it. Right. 2655. सॉरी एक मिनट ये नहीं. Total will be 5,300. Yeah. So total will be 3,400 rupees. Okay. तो 1% ड्रॉप होता है अगर आपका वॉलेटिलिटी, अगर मान लीजिए निफ्टी में 1% ड्रॉप हो जाता है तो इस स्ट्रैटेजी में जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन वॉलेटिलिटी वी कैन प्रॉफिट फ्रॉम 3,400 रुपीज. राइट. ओके. ठीक है. अगर नाउ अगर इसमें अगर पता चल जाए कि वाई शॉर्ट स्ट्रैटेजी इज मोर पॉपुलर देन शॉर्ट स्ट्रैंगल और आयरन फ्लाई. ठीक है. अगर आप देखिए ये नंबर है 3,452. राइट. अगर सेम चीज मैं स्ट्रैंगल करूंगा, ठीक है, राइट, और इसमें ग्रीन देखिए आपको 2,400 ही है. हाँ, तो वॉलेटिलिटी कंपोनेंट इसमें कम है, वेगा कम है. राइट. करेक्ट. तो जो शॉर्ट वॉलेटिलिटी का जो कैप्चर करना है इसमें हम कम कर सकते हैं कंपेयर टू शॉर्ट स्ट्रैडल. करेक्ट. बिकॉज़ वो एट द मनी है तो उसमें ज्यादा है. हाँ. अभी इश्यू क्या है, ये शॉर्ट स्ट्रैडल शॉर्ट स्ट्रैंगल में इश्यू ये है, एक मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है. करेक्ट. ठीक है. और दूसरा है कि अनडिफाइंड रिस्क है इसमें. ओके. ठीक है. बोथ साइड्स अनडिफाइंड रिस्क है. सो सडनली अगर बहुत ज्यादा ह्यूज मूवमेंट है, आई मीन इट्स अनलाइकली, बट अगर 5-6% एक बार में मूव हो गया देन यू कैन सी इमीडिएट लॉस. ये हो सकता है इस स्ट्रेटजीज में. तो इसलिए कुछ लोग करते हैं डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजीज. उसमें एक है अपना जो मैंने जो बताया, एक है शॉर्ट आयरन कॉन्डोर. ओके. इसमें इट्स नथिंग बट एक शॉर्ट स्ट्रैंगल है और अपने हेजेस बाय किया है. ओके. ऑन बोथ साइड्स हेज बाय किया, वो अपना शॉर्ट आयरन कॉन्डोर हो गया. ओके. तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, कौन से कॉल पुट बाय हुए हैं सर, अगर हम समझ सके तो. फॉर एग्जांपल अगर अभी ये अपना शॉर्ट स्ट्रैंगल है, ठीक है, राइट, और हमने हेज बाय किया आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन बाय किया. ओके, गॉट इट. पुट ऑप्शन बाय किया, तो हमारा रिस्क डिफाइंड हो गया इससे. करेक्ट. राइट. तो इवन इफ 5% 6% मूव होता है अंडरलाइन, तो हमें ठीक है, हमें पहले से ही पता है कि कितना लॉस होने वाला है. राइट. ओके. ये रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी. और ये जो बाकी जो बताया मैंने वो अनडिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजी है, बिकॉज वी डोंट नो वो लॉस कितना भी हो सकता है. राइट. सो ये आपको ध्यान में रखना है इफ समबडी वांट्स टू डू शॉर्ट स्ट्रैंगल कि अनडिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजी है. ठीक है. ओके. और इसमें ये देखना है कि आपका जो ग्रीक्स जो है इसमें, अगर अभी इसको आयरन कॉन्डोर कर देते हैं, जो आयरन कॉन्डोर ग्रीक्स देखिए आपका अभी 1200 हो गया, 1300 हो गया. तो कहाँ 3,500 और कहाँ 1300. ओके. आप इसमें बहुत कम कैप्चर कर सकते हैं वॉलेटिलिटी. अगर ड्रॉप इन वॉलेटिलिटी जो है कम कैप्चर कर सकते हैं. सो इट्स ऑल गिव एंड टेक है. करेक्ट. तो वहां पे रिस्क ज्यादा है बट वहां पे आप वॉलेटिलिटी भी अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं. और यहाँ पे रिस्क डिफाइंड है बट यहाँ पे हम कम वॉलेटिलिटी कैप्चर कर सकते हैं. करेक्ट. राइट सर. सो ये 4 स्ट्रेटेजीज है. ठीक है. ओके. तो अगर अब पॉपुलर स्ट्रेटेजी से जाते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल है इसमें. ओके. हाँ. हम पोजिशनल में जाते हैं और हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट बैक टेस्टिंग मेथड्स है. ये है ऑपटेस्ट जो अपना ऑप्शंस बैक टेस्टिंग टूल है. ओके. उसमें इंट्राडे, पोजिशनल, कस्टम सब कर सकते हैं. और हम अभी पोजिशनल करते हैं. उसमें इवेंट बेस्ड बैक टेस्टिंग मेथड है जिसमें इवेंट्स जैसे अर्निंग्स रिजल्ट्स है और आरबीआई इवेंट्स है और स्टेट इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस, बजट डेज, ये सब इवेंट्स में. तो हमारा फोकस है बजट डेज, सो हम लोग बजट डेज का करते हैं. ओके. और इसमें हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल चूज करते हैं. ठीक है. शॉर्ट स्ट्रैडल अपना स्ट्रैटेजी है. तो इसमें हम निफ्टी यूज करते हैं और वी गो ऑल द वे बैक टू
2019 जहां से हमारा डेटा है, ओके तो वहां तक चले जाते हैं हम लोग। ठीक है सर। ओके, सो 29 तो and then बेसिकली हम बैक टेस्ट कर रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी अगर हमने 2019 से किया होता तो हर हाँ, बजट में हमें क्या मिला है। यस एग्जैक्टली। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो आईवी आईवी जो है इंक्रीज होता है जब तक अपना इवेंट नहीं खत्म होता है, ठीक है। हाँ करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इवेंट के दिन जब मैक्सिमम आईवी होता है, जब मैक्सिमम विक्स हाँ होता है, उस हाँ दिन हम अपना शॉर्ट करते हैं जब प्रीमियम ज्यादा होता है। करेक्ट। ज्यादा प्रीमियम्स होने पे क्या होता है, आपको कुशन मिलता है, तो आपका ब्रेक इवन जो है जो वाइडर होता है। तो वाइडर हो इसलिए जाता हम है लोग राइट। टारगेट करेंगे जब प्रीमियम सबसे ज्यादा होता है। ओके तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन द इवेंट डे 0, सो एंटर ऑन इवेंट डे, ठीक है। और ओके सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, डजेंट मैटर, 9:20 या नाइन ठीक है। थर्टी जो। ओके और एग्जिट करेंगे हम, थ्री ऑप्शंस देखेंगे उसमें, और हाँ नेक्स्ट डे एग्जिट करेंगे, ओके ठीक है। तो हमारा होप ये है, बाय नेक्स्ट डे अपना वॉलेटिलिटी क्रश हो जाएगा। क्रश हो जाए करेक्ट। बजट हो जाने के बाद, अनाउंसमेंट्स होने के बाद वो क्रश हो जाता है। ओके तो तब क्या होगा ये देखेंगे हम लोग, वीकली ऑप्शंस यूज करेंगे इसमें। ओके तो से ऑन द डे एंड देन नेक्स्ट डे हम लोग एग्जिट करेंगे। सो ओवरऑल 2 डेज हम ये ट्रेड कर रहे हैं, ऑन द ठीक है बजट डे एंड द नेक्स्ट डे एट द 3:20 हम लोग एग्जिट कर देंगे इसको। ठीक है सो 250 डेल्टा कॉल पुट स्ट्राइक हम लोग यूज करेंगे, और मान लीजिए हम 30% स्टॉप लॉस यूज कर लेंगे, जस्ट टू अवॉइड ओके अनलिमिटेड रिस्क, ठीक है। और बाकी सब भूल जाइए। और ये मार्जिन है बेस्ड ऑन करंट, अभी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इतना है, ओके और हम इसको 1.5 टाइम्स कर देते हैं एज ए पोर्टफोलियो कैपिटल मान के, ठीक ठीक है। है तो अभी हम बैक टेस्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 6 years ऑफ डेटा है ये इसमें, ठीक है। ओके तो हम लोग 2 दिन होल्ड करने पे ये रिजल्ट है, 18,000 प्रॉफिट है हमारा। ओ दैट्स गुड हाँ एवरेज पीएनएल 200 and 359 है, ड्रॉडाउन बहुत हाँ कम है। ओके ये अपना कैपिटल ऑलरेडी देखा है हमने। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 8 है, और उसमें 5 प्रॉफिटेबल, 3 लूजिंग है। तो अपना विन ओके रेट हो गया 62.5, ओके और अपना एवरेज लॉस है 7,600, और एवरेज गेन है 8,300। सो मोर और लेस सिमिलर रेंज में है एवरेज लॉस एंड गेन। ये ओके अपना पूरा गेन इतना है, ग्रॉस गेन्स, टोटल गेन्स। हाँ अपना टोटल लॉस इतना है, तो ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना टोटल पीएनएल आ जाएगा। सो एक्सपेक्टेंसी ये बोलता है कि लॉन्ग टर्म, ये अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं रन तो करते हैं तो कितना हाई एक्सपेक्टेंसी प्रोबेबिलिटी, है। हाँ, सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रॉफिटेबल रहेगा। और 3 ओके एग्जिट किया विथ स्टॉप लॉस हमने, राइट। और तो मैक्सिमम ये लॉस जो कितना हुआ और मैक्सिमम राइट प्रॉफिट कितना हुआ ये दिखा रहा है इसमें। करेक्ट यस ओके। सो ये डेटा 2019 से लेके अब तक मतलब अब जो यस 2024 तक का है 25 यस एक्चुअली। यस 25, सो लास्ट फरवरी तक का। ओके तो ये हुआ 2 दिन अगर हम होल्ड किए तो, अगर, हाँ क्योंकि ये जो वोलेटिलिटी जो है एक दिन में होता है, ड्रॉप होता है, बट कभी कभी उसको दो भी दिन भी थोड़ा लग टाइम सकता है। लगता है, एक दिन में ही करेक्ट नहीं होता है। सो सेवरल डेज भी लगता है पूरा वोलेटिलिटी ड्रॉप होने में। अगर अपना ओके इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चार्ट देखेंगे, आप देखिए वोलेटिलिटी थोड़ा टाइम लगता है उसमें, राइट राइट एक दिन में नहीं गोइंग होता है स्लोली सब कुछ, राइट हाँ राइट स्लोली डाउन होता है। तो सेम चीज ये सोच के हम करेंगे कि हम लोग, ठीक है, 5 डेज के बाद एग्जिट करेंगे, तब क्या होता है ओके रिजल्ट्स का। अब ये रिजल्ट्स है, हमारा पीएनएल अभी बढ़ गया है ओ क्योंकि हम ज्यादा दिन होल्ड किया है। राइट सो ऑब्वियसली विल हैव मोर प्रॉफिट, ठीक विन है। रेट ही सो थोड़ा बढ़ गया हमारा। यस यस, सो अपना एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गया है इसका, हाँ अपना राइट ओवरऑल विन रेट भी बढ़ गया 75% अभी। करेक्ट पहले 3 लूजिंग ट्रेड्स से अभी 2 लूजिंग ट्रेड्स है। टू तो लूजिंग ट्रेड है। व्हेन वी आर गिविंग मोर टाइम, तो अपना ट्रेड अपना फेवर आने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड हियर, कि राइट 5 दिन लगा है इसमें। और अब ओके रिजल्ट्स भी देख सकते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ उसमें। तो किस ओके किस एंट्री प्राइस में हमने एंटर किया, किस एग्जिट प्राइस में एग्जिट किया, और जब हाँ एंटर किया है उस समय आईवीपी क्या था, आईवी राइट परसेंटाइल, तो अपना प्रीमियम्स कितना ज्यादा था, करेक्ट। तो ये भी बताता है। और लॉट साइज क्या था उस समय। और अच्छा अगर आप, हाँ, देयर इज वन एग्जांपल कि इन 2021 द आईवी परसेंटाइल वाज 82 देन आल्सो हमें लॉस हुआ था। यस ये यस वाला। तो अगर आप देखेंगे उसमें पता चला क्यों लॉस हुआ।
इसमें लॉस इसलिए ही हुआ क्योंकि मार्केट जो है एक ही तरफ गया था। ओह यस, राइट। तो हम, क्योंकि अभी अगर अगर स्टाडल देखेंगे, अगर मैं जस्ट दिखाता हूँ, तो मार्केट क्या हुआ, एक ही तरफ गया है, तो ऐसे ऊपर चलता गया। तो ऊपर चलते ओके, सो जाने पे, दैट ट्रेंडिंग हाँ, ट्रेंडिंग हो गया। ट्रेंडिंग हो गया। ट्रेंडिंग होने पे अगर देखिए, अगर T+0 जो ब्लू लाइन है, अगर हाँ, ट्रेंडिंग होता जाएगा आपको लॉस बढ़ता जाएगा। करेक्ट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हुआ। तो ओके, ये दैट इज हाउ यू सी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आपका क्या करेक्ट। हुआ इसमें, आपका कॉल ऑप्शन बढ़ता गया और हाँ, पुट ऑप्शन आपको कंपेंसेट नहीं किया। राइट। सो ये ओके, दैट्स द रीजन वी लॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। राइट, तो हम लोग ऐसा ईच एंड इंडिविजुअल ट्रेड जाके देख सकते हैं कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ उसमें। राइट, सो ये सब इसमें देख सकते हैं। सो ये होगा। एंड व्हाट इफ अगर हमें 10 दिन रख के देखना है तब क्या होगा, तो ये भी देख सकते हैं। अभी हमारा ओके, समरी उतना है, 47,000 है। ठीक है, हाँ, हम रिटर्न से 13%, 14%। राइट। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी 70,000 हो गया ऑलमोस्ट, ओह, और अपना रिटर्न एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया, 20%। रिटर्न बढ़ गया। हाँ, बढ़ राइट, गई। सो ये ओके, पर डे रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट ओवरऑल रिटर्न्स देखेंगे तो ये बढ़ेगा। तो बढ़ जाएगा, राइट, सो करेक्ट। आप बट एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, आपका विन रेट ऑलमोस्ट सेम ही है। राइट, तो तो व्हाट ये यू सब, सजेस्ट सर कि हमें हमें क्या करना चाहिए? सेम डे स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, 1 डे रखना चाहिए, 5 डे? सी वन डे, सी दैट्स व्हाट, सी वन डे का भी अपना रिस्क रहेगा, 5 डे का भी रिस्क रहेगा, 10 डे का भी रिस्क रहता है। मतलब ओके, ऐसा रिस्क फ्री ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, रिस्क तो हाँ, रहेगा, बट इफ यू आर somebody who don't want to take any risk, you can also exit on the same day. So for राइट, example, let's take the example, अगर हम एग्जिट भी सेम डे करते हैं 320 को, हाँ, तब क्या हाँ, होता है, तब आपका 15,000 होगा प्रॉफिट। ओके, तो विन सेम रेट इज डे, 50%, रिटर्न विल हाँ, बी 4.5%, सो इट्स हाँ, टोटली डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन कि उसे क्या यस, करना है। यस, यस। तो अगर आपको नेक्स्ट डे गैप अप का, गैप डाउन का रिस्क नहीं लेना है, देन यू एग्जिट टुडे इटसेल्फ। करेक्ट, तो ये आपका हो गया, फिर आपका विन रेट कम हुआ इसमें, मतलब प्रॉफिटेबल है, राइट, बट विन रेट कम हो जाएगा। आपको एक्सपेंसिव से फिर भी ठीक है, बट इट्स ऑल डिपेंड्स, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी के डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड होगा ये। करेक्ट, ठीक है, बट ऑन एन ओके, एवरेज, बिकॉज जब आपका प्रीमियम ज्यादा है, जब वो करते हैं तो आपको थोड़ा हाँ, क्वेश्चन रहेगा। वो आपका बैक टेस्टिंग राइट, ऑलरेडी बताया है। एट एट वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8 ट्रेड्स, राइट। राइट, जैसे 5 डेज का देख लेंगे, 8 डेज हाँ, का आपका आपके पास रिजल्ट्स है। राइट, सेइंग दैट 75% प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। सो करेक्ट, 25% तो रिस्क तो रहेगा ही। आई मीन दैट इज, जब व्हेन यू आर कमिंग इन द मार्केट, दैट हैज टू बी एक्सपेक्टेड। राइट, बट प्रोबेबिलिटी ये बता रहा है कि मोर और लेस यू विल बी प्रॉफिटेबल। ओके, तो ये अगर आप, सो इफ यू आर रेडी विथ, यू आर एक्सेप्टिंग दिस रिजल्ट्स एंड यू आर रेडी टू गो विद दिस प्रोबेबिलिटीज, देन गो विथ शॉर्ट स्ट्रैडल। और सेम चीज आप ओके, शॉर्ट स्ट्रैंगल भी कर सकते हैं, बट उतना सेम प्रॉफिट नहीं होगा, उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने रीजन बताया ऑलरेडी आपको, है ना। हाँ, क्योंकि उसमें वेगा कम रहता है, तो वेगा कम रहता है, तो आपका अभी 47,000 है ना, राइट, अभी शॉर्ट स्ट्रैंगल में आपका कम हो जाएगा, 24,000 ही होगा। करेक्ट, अगर आयरन काउंटर करेंगे उससे भी कम हो जाएगा। सो आप, यू कैन गो एंड टेस्ट ऑल द स्ट्रेटेजीज राइट, करेक्ट। कि कौन सा यहाँ पे अच्छा है, तो कौन अपना सा। अपना टेस्ट कर सकते हाँ, हैं कौन सा अच्छा यस, काम करेगा, कौन सा नहीं यस, करेगा, एज पर द रिस्क। यस। तो ये भी करेक्ट, मोर और लेस स्ट्रैंगल के बराबर ही है। तो मे बी ओके, यू कैन गो राइट, विद दिस। हाँ, क्योंकि हाँ, इसमें रिस्क डिफाइंड है आपका। तो हाँ, सो आप राइट सब सर, चेक करो एंड सी व्हाट फिट्स यू, और उसके हिसाब से अपना डिफरेंट बैक टेस्टिंग करके अपना खुद से चेक कर लीजिए। ये ऑब्स्ट्रा अगर आपका प्रो सब्सक्रिप्शन है तो अब टेस्ट फ्री है उसके साथ। ओके, दैट्स गुड, हाँ, तो सो यू कैन गो एंड बैक टेस्ट एंड फाइंड व्हाट इज द आइडियल स्ट्रैटेजी आपके लिए है। ओके। रघुनाथ जी, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी था, एंड आपका और मेरा इंटरेक्शन पहली बार हुआ है, एंड मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये, बिकॉज दिस इज वेरी लॉजिकल स्ट्रैटेजी, यस, राइट। यस। हाँ, ओके सर, थैंक ओके, यू वेरी मच। थैंक यू गाइस।